Okay, here we are taking one problem from NCERT. This is the NCERT class 11 and example number 3.9 on the page number 52. So first of all, you may pause the video and read the problem. Here this is saying that two parallel trains, rail tracks run north south. So here east west north south. Train A moves north with a speed of 54 km per hour. तो यहाँ पर आपको दे रखा है स्पीड ऑफ ट्रेन, डेफिनेटली दिस विल बी विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड. और ये आपको गिवन है, दिस इज द गिवन यू 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर. ट्रेन मूव्स नॉर्थ डायरेक्शन में. नाउ फॉर द सिंप्लिसिटी आई एम टेकिंग दिस इज एज द y direction. Then you know this is the positive y direction and this will be negative y direction, and therefore in north direction I am taking it as 54j. 54, I am taking it as 54j. What is the j? J is the unit vector in the y direction. So 54j kilometer per hour. If I change it into the meter per second, then this will be equal to 54 into 5 upon 18. This will be equal to 15 j meter per second, 15j meter per second. In the same way, I am writing here, this will be equal to 15j meter per second. Now what is the next? Next is when train B moves with a speed of 90 km per hour, moves south direction में. So now I will take it as a negative y direction. So velocity of now this two trains ना. Let this is the train A. Here train B with respect to ground. Velocity of, you're right, it is A. This is A, this is B. Okay. Velocity of train B with respect to ground is equal to, this is given as 90 in south direction, 90 km per hour is in south direction. I am taking minus j kilometer per hour, and this will be equal to in the meter per second, this will be equal to minus 90 into 5 upon 18. This will be equal to 25 j meter per second. Okay. And what is saying, so what is the, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है what is the velocity of B with respect to A. Velocity of B with respect to A. Velocity of B with respect to A. अब यदि आपने हमारा जो पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने आपको क्या था, यदि हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ B with respect to A, तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, this will be equal to velocity of B with respect to ground plus
velocity of ground with respect to A. Okay, velocity of B with respect to ground and velocity of ground with respect to A. Here these are the vectors, वेक्टर फॉर्म में है ये भी आपका. ओके, नाउ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारे पास है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ए, और हमारे पास क्या है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो हम क्या लिख लेंगे इसको, आप इसको लिख लीजिए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसको हम लिख लेते हैं माइनस का, आप जानते हैं वेक्टर है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपका माइनस का वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ए. तो हमने यहां पर इसको चेंज कर दिया. अब आप देखते हैं इनकी वैल्यू क्या है. इसकी वैल्यू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस का 25J, माइनस का 25J, एंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15J, देन दिस विल बी इक्वल टू कितना है यहाँ पे माइनस का 40J, एंड जे डायरेक्शन कौन सा है आपका -J, इट मीन्स साउथ डायरेक्शन में. इट मीन्स क्या हो गया, देयरफॉर हियर आंसर इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन B विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन A विल बी इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड इन द साउथ डायरेक्शन. ओके, नाउ our second question, velocity of ground with respect to B, velocity of ground with respect to B, तो हम कहां से फाइंड कर सकते हैं, velocity of ground with respect to B will be equal to, this will be equal to माइनस का velocity of B with respect to ground होगा आपका, और ये आपका आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू माइनस, और V B G की वैल्यू कितनी हमारी माइनस का 25J है, तो दिस विल बी माइनस का 25J विल बी इक्वल टू माइनस प्लस 25J. It means velocity of ground with respect to B will be equal to 25 meter per second. 25 meter per second in the north direction. और यहां पर हमारा जो थर्ड पार्ट है वो कह रहा है वेलोसिटी ऑफ a monkey running on the roof. Velocity of monkey running on the roof of the train A against its motion, but it means visible velocity of 80 km per hour with respect to train A as observed by the man standing on the ground. तो यहाँ पर हमको गिवन है कि एक मंकी है जो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन ए पर रन कर रहा है, लेकिन ट्रेन ए के वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन, बट ट्रेन ए की स्पीड के अगेंस्ट जा रहा है वो. तो ट्रेन ए हमारा कहां पर है, हियर दिस इज द ट्रेन ए ये है हमारा, और उसकी वेलोसिटी कितनी थी 15J थी. तो इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में हमें क्या हम क्या लेंगे, माइनस का लेंगे इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि उसे बोला है अगेंस्ट. हियर ओके ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं. उसने केवल ट्रेन ए की बात करी है, तो हम केवल ट्रेन ए को ले रहे हैं. ओके,
तो यहाँ पर गिवन है कि एक मंकी है जो ट्रेन ए के मोशन के अगेंस्ट मूव कर रहा है। तो हियर वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए। तो अब यहां पर हमको गिवन है कि वो जो मंकी है वो ट्रेन ए के अगेंस्ट मूव कर रहा है, तो देयरफॉर दिस विल बी माइनस का, यदि ये आपका प्लस का जे है तो डेफिनेटली दिस विल बी माइनस। कितना है आपका ये 18 किलोमीटर पर आवर, तो 18 किलोमीटर पर आवर जे। और यदि हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में तो 5/18, तो दिस विल बी इक्वल टू आपका कितना जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 5 मीटर पर सेकंड। हमारा यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है कि एक पर्सन है और वो ग्राउंड से वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो विद रेस्पेक्ट टू दैट पर्सन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द मंकी। तो हमको निकालना है क्या, वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू, वही फार्मूला जो हमने आपको बताया था। कैसे इसको अरेंज करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मंकी with respect to train A plus velocity of train A with respect to ground। अब आपको बस यहां पे इनकी वैल्यूज रखनी है। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू A, दिस इज गिवन माइनस का 5J, माइनस का 5J एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 15J है, 15J, this will be equal to 15 and minus 5 plus 10, so 10J meter per second. It means velocity of monkey with respect to ground will be equal to 10 meter per second in the north direction, okay. So here you are seeing that this is how simple, if we use the unit vector I and j and we are using this arrangement. You may compare the solution of the NCERT example and to this solution. Then you will find that this is easy to solve this question in this way, okay. I will take one more example in the next video.